तो समझ ही नहीं आता, समझ नहीं देता मेरे को लगता 3 से 4 में समझ नहीं देगा। मेरे संपर्क में अगर कोई आता है ना तो मैं तेरा नंबर दूंगा, है ना? फोन से बिल्कुल अपने अपने हिसाब से वाला कोई काम नहीं, जो बनता है वो ले लो, बात खत्म। तेरी तेरी फर्स्ट वैक्सीन तो लग गई थी 5 अप्रैल। Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. In the last class, we have studied about the glossopharyngeal nerve. Okay, only the vagus, then spinal accessory, and hypoglossal nerve. These three nerves they are left. Okay. In the previous classes, I would like to let me know how the things you understand. Okay. तो कुछ questions मैं पूछूंगी only. Okay, Neha. Cranial nerve. Name the smallest cranial nerve. नहीं पता? दिव्यांशु? Yes, ma'am. हाँ, smallest cranial nerve. जल्दी जल्दी करो, 2 मिनट में अपने को करना है ब्रीफिंग. नहीं पता? ओके, दिव्यांशु. इसलिए Trochlear. trochlear, good. Okay, then largest cranial nerve. Anybody? Trigeminal. The only nerve which arises from the dorsal aspect of the brain. Trochlear. Trochlear, good. Okay. In ganglion term is related with which nerve? Ganglion. Trigeminal. Okay. Then this all the of the eye, maximum muscles which are supplied by the nerve. Name that nerve. Oculomotor. Good. Okay. The lateral rectus muscle is supplied by the nerve. Abducens. Okay. Then superior oblique. Trochlear. Trochlear. Okay. Then stylomastite foramen is the foramen for exit of which nerve? Facial. 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 Okay. Then mental nerve is the branch of or is the continuation of ultimately trigeminal. Actually, it is the mandibular nerve. Okay, that continues as the mental, which comes out from the mental foramen. Okay. तो कुछ चीजें आप लोग को क्लियर हो गई. अच्छा, देन ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, द टाइप ऑफ नर्व. ठीक है, द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, or we can say the nature of the glossopharyngeal nerve. Which type of nerve is this? Mixed. Okay. Then facial. Mixed. Name the nerves
which are also considered as parasympathetic nerve. Name those nerves. Oculomotor, facial, glossopharyngeal, vagus. गुड, ठीक है। तो जितना पढ़ा है थोड़ा आपको कुछ चीजें क्लियर है, और जब पढ़ोगे और अच्छे से तो और क्लियर हो जाएगा। नाउ टुडे वी स्टार्ट विद another nerve, and that nerve is the vagus, and this nerve is very important nerve and is the longest nerve, the longest cranial nerve. Okay, actually it starts from the brain or medulla oblongata of the brain and reaches up to the abdomen. Okay, otherwise maximum nerve or we can say most of the nerves, cranial nerves, they are limited just at this head region. Okay, this cranial nerve, it reaches up to the abdomen. Okay, this is the longest nerve, or and also considered as the parasympathetic nerve. Okay, now just wait. Now, here today we start with the vagus nerve, which is the 10th cranial nerve. Nature-wise, the nerve is mixed nerve. Okay. Now, here again, this nerve, it starts from the medulla oblongata. This is medulla. Actually, I have not written here medulla oblongata. This is the medulla oblongata portion of the brain. Okay. From here, this nerve arises. Okay, and it comes out from the cranial cavity through a foramen, and this foramen is the jugular foramen. Okay, another name for jugular foramen, anybody? foramen lacerum. Lacerum. ठीक है, yesterday I told you, और आपको भी पता है, वैसे मैडम ने पढ़ाया. ठीक है, तो foramen lacerum or jugular foramen. From this foramen, the vagus nerve, it comes out, and while coming out, it makes this ganglion, and this ganglion is also known as jugular ganglion. ठीक है, foramen का नाम भी jugular foramen है, and is in this foramen the ganglion of the nerve is present, that is known as jugular ganglion. ठीक है, before forming the ganglion, ठीक है, this vagus nerve also receives some fibers from the 9th cranial nerve as well as the 11th cranial nerve that I am not showing here. Okay, but here it also joins with the adjacent nerves like 9th one as well as 11th nerve. Okay, so in the foramen it forms the jugular ganglion. Okay, then it runs in the neck region. Actually ये neck region होगा जो मैं figure में बताऊंगी. In the neck region, ठीक है, when it comes out from the foramen, it goes downwards and backwards, the lateral aspect of the nerve, and that furrow is known as jugular furrow. Okay, then here in the neck region, this nerve receives the fibers from the sympathetic ganglion. ठीक है, यहाँ मैंने लिखना भूल गई थी. This red color ganglion is known as cranial cervical ganglion. Okay, you can write here. This is the cranial cervical ganglion. ठीक है, present adjacent to the occipital condyle. आपको पता है occipital condyle occipital bone का part है. ठीक है, foramen magnum के side में. So here this cranial cervical ganglion, this red color ganglion is present. Name is cranial or superior cervical ganglion, which is the part of the sympathetic nervous system. Okay, as you know, vagus nerve is the parasympathetic. Then this nerve, it runs like this green color. Okay, and it receives fibers from the superior or cranial cervical ganglion, that is the sympathetic nerve. Okay, so hence when this sympathetic fibers that join with the vagus nerve, here it is combinedly known as, जो green और red दिख रहा है, it is combinedly known as vagosympathetic trunk. यहाँ अपन इसको वेगस नहीं कहेंगे, क्यों? Because it joins the fibers of the sympathetic ganglion also. Hence in this region, in the neck region,
ठीक है. This vagus nerve along with the red color fibers, and these red color fibers are the sympathetic fibers known as vagosympathetic trunk. Trunk मतलब जब एक से ज्यादा चीजें हो जाएगी अलग अलग, तो hence here it is known as vagosympathetic trunk in the neck region. ठीक है. तो this is neck region, जो black color से मैंने outline बनाई है. तो in the neck region along with the sympathetic fibers run, ठीक है, and hence known as vagosympathetic trunk. Here it is present in a sheath. एक आपको black color की lining और दिख रही है, ठीक है. This sheath is known as carotid sheath because this sheath also contains, एक तो vagosympathetic trunk भी होगा इसमें, इसके अलावा this sheath contains internal jugular vein and common carotid artery, ठीक है, which we study in this angiology portion also. ठीक है, जो मैंने अभी डायग्राम नहीं बनाया although, but you can see here this black colored is the sheath. ठीक है, sheath मतलब एक tubular connective tissue fibers की पूरी covering है, that is known as sheath. ठीक है, तो this carotid sheath contains apart from this vagosympathetic trunk दो component और होते हैं. ठीक है, तो 3 components of the carotid sheath are, one is vagosympathetic trunk, ठीक है, which is shown here. Apart from this vagosympathetic trunk, it also contains the internal jugular vein and common carotid artery. जब artery पढ़ेंगे तो बताएंगे, jugular vein पढ़ेंगे तब भी बताएंगे. ठीक है, तो these 3 components they are present or these are surrounded by a common connective tissue fiber sheath, and this sheath is known as carotid sheath. ठीक है, तो आप लोग अभी केवल इसमें वेगोसिम्पैथिक ट्रंक देख रहे हैं, बाकी रिमेनिंग 2 कंपोनेंट्स आर नॉट प्रेजेंट हियर. ठीक है, अभी नहीं दिखा रहे, अदरवाइज दे आर प्रेजेंट. ठीक है, तो इन द नेक रीजन द नर्व इज नोन एज वेगोसिम्पैथेटिक ट्रंक. ठीक है, अब क्या होगा, नेक रीजन से ये कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द थोरैसिक कैविटी. दिस इज थोरैक्स. ठीक है, it enters inside the thoracic cavity. This is thoracic cavity. इसके बाद की पूरी thoracic cavity है. ठीक है, तो before entering inside the thoracic cavity, देखो red अलग हो गया यहाँ से. ठीक है, तो means it gets separated from the fibers. ठीक है, यहाँ आने के बाद वो अलग हो जाते दोनों, तो then it is known as vagus nerve only. ठीक है, before this because it combines, it runs along with the sympathetic fibers. In this region, it is known as vagosympathetic trunk, which is present inside the carotid sheath. ठीक है, along with the internal jugular vein and common carotid artery. ठीक है, before entering inside the thoracic cavity, these sympathetic fibers they get separated, and this vagus nerve it enters inside thoracic cavity just lateral to the heart. ठीक है, aortic arch के दोनों साइड जाएंगे. ठीक है, then when it is present in the middle mediastinum, हम कह सकते हैं, अभी हार्ट तो बनाया नहीं यहाँ पे. ठीक है, तो दिस राइट आर लिखा हुआ है, दिस इज राइट वेगस नर्व एंड लेफ्ट, दोनों नहीं दिखाई ऑल्दो शुरू में, बट दिस वन इज द राइट एंड हियर एल इज द लेफ्ट वन. ओके, तो राइट डिवाइड्स इनटू 2 ट्रंक्स, अपर एंड लोअर ट्रंक. ठीक है, सिमिलरली दिस लेफ्ट आल्सो डिवाइड्स इनटू अपर एंड लोअर ट्रंक. ठीक है, तो अपर ट्रंक इज नोन एज दिस, तो RS जो लिखा है दैट इज राइट सुपीरियर ट्रंक बोल लो या नर्व बोल लो. ठीक है, तो राइट सुपीरियर नर्व, राइट इंफीरियर RI जो लिखा है दैट इज राइट इंफीरियर. सिमिलरली दिस लेफ्ट वन आल्सो डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, अपर एंड लोअर. एनी कंफ्यूजन? ओके, तो इन द thoracic cavity, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो ऑल द cranial nerves they are paired. ठीक है, राइट होगा और लेफ्ट भी होगा, एंड दे सप्लाई टू द करस्पॉन्डिंग पोर्शन. ठीक है, राइट वाला राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट वाला जो भी नर्व पढ़ रहे हैं अपन हमेशा 2 पढ़ रहे हैं, बट वेगस में यहाँ पे ज्वाइनिंग क्यों करनी पड़ रही, बिकॉज आगे जाके आप देखोगे सुपीरियर इंफीरियर ट्रंक बना रहे हैं. ठीक है, दे फॉर्म द कॉमन ट्रंक, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग बोथ. बाकी सब में ऐसा 2 नहीं दिखाया, एक ही साइड का दिखाया है. ठीक है, तो हियर देयर इज नेसेसिटी to show these right and left branches, nerves, right vagus and L means left vagus. Okay, so right vagus divides into upper and lower division. The upper one is known as superior, right? So RS लिखा है. Similarly RI means inferior. जो left vagus again divides into 2,
this left superior and left inferior. Why? When these nerve they reach in the caudal mediastinum. ठीक है? What is mediastinum? किसी को पता है? Anybody? Ma'am, space. ये thoracic cavity part. हाँ, Ma'am, space. pardon, बोलो. Ma'am, space between the two lungs where the heart is present. गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो मीडियास्टाइनम एक्चुअली हार्ट के आगे पीछे भी जो होगा दैट द स्पेस एंटीरियर टू द हार्ट इज नोन एज एंटीरियर मीडियास्टाइनम, वेयर द हार्ट इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज मिडिल मीडियास्टाइनम, एंड बिहाइंड द हार्ट देयर इज स्मॉल स्पेस दैट इज नोन एज पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम. ठीक है, तो कॉमन स्पेस बिटवीन द टू लंग्स दैट इज नोन एज मीडियास्टाइनम. ठीक है, उसमें 3 में इमेजिनरी डिवीजन कर सकते हैं, एंटीरियर मीडियास्टाइनम, मिडिल एंड कॉर्डल. तो हार्ट जहाँ है उसको अपन मान सकते हैं दैट इज द मिडिल मीडियास्टाइनम. Anterior to this there is small space that is anterior mediastinum, and caudal to this posterior or caudal mediastinum. ठीक है, then अच्छा, this divides into 2 branches, superior and inferior. Similarly, left one also divides into superior and inferior branches. Then superior trunk of left vagus and right vagus they combine. ठीक है, किसका superior, right and left they combine to form the superior trunk. ठीक है, in the caudal mediastinum. caudal mediastinum में क्या हो जाएगा, दोनों के superior trunk ऊपर की तरफ join करके बनाएंगे. ठीक है, similarly the inferior trunk of right vagus and left vagus form the inferior trunk. ये clear हुआ? पहले 2 में divide हुई, right one superior inferior. Similarly, left one also divides into superior inferior. Then superior branches of both the nerve, right or left की, they combine to form the superior trunk. ठीक है, अब दोनों right और left मिल गई है ऊपर वाली, तो क्या बनाएगी, they form the superior trunk of the vagus. Similarly, जो नीचे वाला inferior branches जो रहेगी of left one as well as right one, they combine to form the inferior trunk. यहाँ पे किसी को confusion हुआ? पूछ सकते हो. किसले any confusion regarding this branches? Payal, any confusion beta? No, ma'am. Okay. प्रियंका, कोई confusion इसमें? No, ma'am. ठीक है, आई एम आस्किंग टू द स्टूडेंट्स हु आर विजिबल. जो मुझे दिख रहा है वो नाम बोल रही हूँ, और भी जो लोग हैं कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क टिल दिस पोर्शन. सुपीरियर एंड इंफीरियर ट्रंक, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ सुपीरियर ट्रंक ऑफ द वेगस एंड इंफीरियर ट्रंक ऑफ द वेगस का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लियर है? दिव्यांशु, कंफ्यूजन है इसमें कोई? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया. तो इन द कॉर्डल मीडियास्टाइनम. ठीक है, अच्छा, अब ये कहाँ जा रहे हैं, ये बीच में लिखा है मैंने ईसोफेगस. ये क्या लिखा हुआ है, ईसोफेगस. तो सुपीरियर ट्रंक इट रन्स ऑन द on dorsal to the esophagus, whereas inferior trunk it runs on the inferior part of the esophagus. ठीक है, correspondingly. Yes. ठीक है, तो this superior trunk it runs on the dorsal surface of the esophagus, whereas inferior trunk of the vagus it runs on the inferior surface or lower surface of the esophagus. ठीक है, then along with the esophagus this superior trunk, अब right left नहीं हुआ. ठीक है, the superior trunk and inferior trunk both along with the esophagus they enter inside the abdominal cavity. कहाँ चले जाएंगे ये, abdominal cavity में. And this opening is known as, यहाँ लिखा नहीं मैंने, hiatus esophageus. This opening is known as hiatus esophageus. ठीक है, means there is no separate opening for the passage of the vagus nerve, because vagus nerve it
एंटर्स इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी अलोंग विद द ईसोफेगस। ठीक है, तो वेगस क्या करेगी, ईसोफेगस के साथ साथ चली जाएगी, तो इसको अलग से ओपनिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द करस्पॉन्डिंग सरफेस ऑफ द ईसोफेगस। तो डॉर्सल वाला जो में सुपीरियर ट्रंक का रहेगा, रन करेगा, एंड इंफीरियर ट्रंक ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट। इज इट क्लियर? So this is the thoracic portion. Thoracic portion से then it enters inside the abdominal cavity, ठीक है, and forming the plexus on the different visceral organs, ठीक है, to supply them. तो इतना भी केवल कोर्स बताया है. This is the course of the esophagus, not the branches. मैंने पहले ही बताया था, any nerve, any artery, how we learn these things. First of all, origin of the particular nerve or artery first. Second thing, कोर्स मतलब कहाँ से वो ट्रैवल कर रही है, कैसे कैसे जा रही है, राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है, या किसी कैविटी के अंदर एंटर कर रही है. देन थर्ड थिंग कम्स, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, मींस ब्रांचेस ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टरी और नर्व. तो अभी अपन नर्व की बात कर रहे हैं. तो दिस वेगस नर्व का 3 कोर्सेस आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल इट अराइजेस फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, कम्स आउट थ्रू जुगुलर फोरामेन, ठीक है, फॉर्म्स द जुगुलर गैंग्लियन. ये पोर्शन पूरा नेक कहलाएगा यहाँ तक का, ठीक है. तो इन द नेक रीजन इट receives the fibers from the superior cervical ganglion or cranial cervical ganglion, which is the sympathetic one, ठीक है. Because it receives the sympathetic fibers here in the neck region, the nerve is known as, anybody? Vagosympathetic trunk. वेगोसिम्पैथेटिक ट्रंक को, ठीक है. तो नेक रीजन में इसको अपन अकेले वेगस नहीं बोलेंगे, वेगोसिम्पैथेटिक ट्रंक दैट इज प्रेजेंट इनसाइड अ शीथ. दैट शीथ इज known as carotid sheath. Other components present in the carotid sheath are, कोई बताएगा? मैंने अभी बताया. Internal jugular vein and common carotid artery. Good, हाँ, internal jugular vein and common carotid artery. Means here it runs along with the internal jugular vein and common carotid artery, ठीक है. When it comes just before entering inside the thoracic cavity, it leaves the sympathetic fibers, again become the vagus nerve. अब यहाँ वेगोसिम्पैथेटिक नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर sympathetic fibers नहीं है, ठीक है. Then as soon as it enters inside the thoracic cavity, ठीक है, and then it reaches on the corresponding aspect of the trachea. राइट साइड वाली राइट की तरफ जाएगी, लेफ्ट वाली राइट फेस में जाएगी. देन इट रन्स बिलो द एओर्टिक आर्च. एओर्टिक आर्च जो राइट वाली एओर्टिक आर्च से नीचे से होते हुए, मतलब हार्ट के पास से होते हुए, देन दे रीच मीडियास्टाइनम. कॉर्डल मीडियास्टाइनम में चूंकि ईसोफेगस से इसका रिलेशन है, तो बिफोर अटैचिंग टू द ईसोफेगस, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व divides into the corresponding superior and inferior branches, ठीक है. तो राइट वाली बनाएगी राइट सुपीरियर एंड राइट इंफीरियर. सिमिलरली लेफ्ट गिव राइज टू लेफ्ट सुपीरियर एंड लेफ्ट इंफीरियर, ओके. इन द कॉर्डल मीडियास्टाइनम देन दे कोर्सेस ऑन द corresponding surface of the esophagus, ठीक है. तो सुपीरियर जो ट्रंक रहेगा ईसोफेगस के सुपीरियर साइड में या डॉर्सल साइड में चलेगा. इंफीरियर ट्रंक जो रहेगा, दैट एस्पेक्ट ऑफ द esophagus, ये दिख रहा है आपको, सुपीरियर वाला ऊपर चल रहा है एंड इंफीरियर वाला नीचे. देन along with the esophagus, these two trunk they enter inside the this thoracic abdominal cavity, ठीक है. अच्छा, यहाँ मैंने दिखाया नहीं. आफ्टर गोइंग हियर, राइट एंड लेफ्ट फिर सेपरेट हो जाएगी एंड दे सप्लाई टू द डिफरेंट एब्डोमिनल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स, ठीक है. उसका डायग्राम अभी नेक्स्ट में मैं दिखाऊंगी, ओके. So this is in the neck region, course of the esophagus in the neck region, ये लिखा हुआ है यहाँ से. And this is in the thorax region, ठीक है. That is known as thoracic vagus, goes inside the abdominal cavity. This is the abdominal course of the this vagus nerve, ठीक है. thoracic course हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा abdominal. तो ये abdomen तक पहुंच गई है, ठीक है. तो during its course, during its journey, ठीक है, इट गिव राइज टू सम ब्रांचेस. जो जो इसके आसपास मिलता जाएगा उसको ये ब्रांचेस देगी. तो इन द सर्वाइकल रीजन, सबसे पहले ये वाला सर्वाइकल है, मतलब इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है. तो दिस वेगस नर्व इट गिव्स सम ब्रांचेस. तो वन इज ऑरिकुलर नर्व, ठीक है. द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द सर्वाइकल कोर्स जो नेक रीजन में है
The first branch is the auricular nerve. Anybody can answer what is auricular? What is the literal meaning of auricle? Last class में बताया था. Related to ear. Gives branches to the ear. ठीक है, auricular nerve दे दिया तो आपको अब ब्रांच रटने की जरूरत नहीं, आपको नाम से समझ में आ जाएगा. ओके, ठीक है. तो auricular nerve supplies इन जनरल बोल सकते हैं, बाकी डिटेल आप पढ़ लेना और बुक से. टू द ईयर, ठीक है, ईयर पिन. और देन सेकंड, इसमें ऑडिटरी मेटर्स को भी सप्लाई करती है एक्चुअली ये. ठीक है. सेकंड ब्रांच इज pharyngeal and esophageal. द नेम इटसेल्फ, ठीक है, गिव द क्लू. pharyngeal means it supplies to the esophageal branches to the esophagus. ठीक है. तो क्योंकि अभी यहाँ जा रही तो यहाँ esophagus भी होगा, यहीं पे pharynx भी होगा. ठीक है. तो ड्यूरिंग इट्स कोर्स इट सप्लाइज टू द, यहाँ यहीं इस एरिया में pharynx एंड esophagus को सप्लाई करेगी. ठीक है. देन थर्ड वन इज द और है ये, ठीक है, एंड नहीं लिखा, और सुपीरियर लैरिंजियल, बिकॉज लैरिंक्स इज आल्सो प्रेजेंट हियर इन द नेक रीजन. ठीक है, जस्ट स्टार्ट, जहाँ पे स्टार्ट होता है नेक. ठीक है. तो हियर इट आल्सो गिव्स द लैरिंजियल ब्रांच. ठीक है. देन aortic nerve in the cervical region, although this region is the cervical, but it gives one branch that reaches or goes to the heart. ठीक है. वो भी thoracic cavity के इनलेट से अंदर जाएगा और aorta को सप्लाई करेगा. ठीक है. aorta से समझ में आ रहा है कि in the thorax, heart is present in the thoracic cavity, but this nerve originates from the, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? सर्वाइकल रीजन, लास्ट ब्रांच है. ठीक है, बिल्कुल बिफोर एंटरिंग इनसाइड द thoracic cavity, the vagus nerve is the last branch, that is aortic nerve. ठीक है. यहाँ ये aortic nerve निकलेगी और वो that supplies to the aorta of the heart. 4 branches of the cervical portion of the this vagus, these are the collateral branches. ये क्या कहलाएंगी? Collateral branches. Then thoracic branches. When this vagus it enters in the thoracic cavity, ये thoracic cavity के अंदर है. ठीक है. Then it gives rise to 3 branches. One is recurrent laryngeal nerve. Meaning of recurrent, anybody? मैंने पहले ही बताया था. ब्रांच रन अपोजिट डायरेक्शन में ब्रांच रन करती है. Any branch which runs opposite to the direction of the parent trunk. ठीक है. तो इसमें लिखा हुआ recurrent laryngeal nerve. Where the larynx is present, larynx कहाँ पे? यहाँ पे होगा, नेक के पास, बिल्कुल शुरुआत में नेक में. And the nerve arises from the thoracic area, मतलब thorax से निकल रही है, बहुत आगे आ गया. और larynx तो पहले नेक में चला है, नेक वाले रीजन में ना. तो this recurrent laryngeal nerve it arises from the thoracic area, मतलब यहाँ कहीं से निकल रही है. ठीक है. And then this nerve it goes back. ठीक है, उल्टा जाएगी. Thus the name has been given recurrent laryngeal nerve. Just wait a bit. Is it clear why it is called as recurrent laryngeal nerve? Because the nerve arises from the thoracic portion of the vagus. ये यहाँ कहीं से निकलेगी. ठीक है. thoracic portion of vagus से निकल के it runs बैक साइड, मतलब बैक साइड कहेंगे या फ्रंट साइड. ठीक है. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेगस नर्व. ठीक है. ये उल्टा जाके इट रीचेस अप टू द लैरिंक्स, यहाँ कहीं जाएगी. ठीक है. हेंस द नेम गिवन रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. ओके. सेकंड इज द कार्डियक नर्व. कार्डियक नर्व यहाँ पे हार्ट होना चाहिए. दिस इज thoracic cavity, यहीं कहीं हार्ट होगा. तो that forms the plexus on the surface of the heart. ठीक है. तो that supplies the this तो दैट इज द कार्डियक नर्व. बाकी आपने फिजियोलॉजी में पढ़ लिया होगा कार्डियक प्लेक्सस के बारे में, रोल ऑफ द हार्ट. ठीक है. देन थर्ड इज द पल्मोनरी नर्व. पल्मोनरी नर्व किसको सप्लाई करेगी? एनीबडी? लंग्स. ठीक है. तो ऑन द सरफेस ऑफ द दिस लंग दिस नर्व फॉर्म्स द पल्मोनरी प्लेक्सस. आपको पता है दिस वेगस नर्व इज पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है. तो पैरासिम्पैथेटिक में आपने पढ़ा है pre-ganglionic nerve fiber is always longer than the post-ganglionic. So thus the ganglion formation is always, or plexus formation जो कहेंगे, that is present on the surface of the organ. ठीक है. organ के surface या adjacent to the organ में plexus formation होगा. Then origin of the
पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बिल्कुल पास में है, तो ऑलवेज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर स्मॉलर देन द प्री गैंग्लियोनिक। ऐसा सिंपैथेटिक में नहीं होता है, सिंपैथेटिक में सिंपैथेटिक चेन चलती है एडजेसेंट टू द दिस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर ऑलवेज स्मॉलर एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक आर लॉन्गर, ठीक है। बट वेगस इज दिस पैरासिम्पैथेटिक, तो हार्ट हो गया ना लंग हो गया, the ganglion formation is present on the surface of that particular organ, ठीक है। then give rise to this post ganglionic fibers, and these post ganglionic fibers are smaller. क्यों? why? because this is the vagus nerve. then abdominal branch, तो इसमें right and left separate रहेगी. These right and left branches again they form the plexus on the surface of the particular organ. तो liver abdominal cavity में, तो that forms the hepatic plexus. स्टमक की बात करेंगे तो यहाँ पे because we are talking with the ruminants, the nerve forms the reticulo-omasal plexus that supplies to this reticulum as well as omasum, another part of this stomach. Then this nerve also innervates the intestine, kidney, adrenal and other visceral organs of the abdomen, ठीक है। तो these three are the courses of the vagus nerve, means in the neck region, in the thorax region and in the abdomen, and during its journey in the different three regions, this nerve gives rise to different branches, and these different branches are named accordingly. जहाँ जहाँ सप्लाई हो रही है, तो सर्वाइकल में 4 ब्रांचेस हो गई, थोरैसिक में 3 ब्रांचेस हो गई, एंड एब्डोमिनल में ये ब्रांचेस के अलावा और भी प्लेक्सस फॉर्मेशन होता है। तो इतना क्लियर होगी आपको रिगार्डिंग वेगस नर्व? Yes, ma'am. दीक्षा, नहीं दिकांक्षा, दिव्यांशु, अर्शिका, any confusion regarding this? No, ma'am. ठीक है, और अब फिगर से और एक्सप्लेन कर देती हूँ। Okay, this is the figure showing the course and distribution of the vagus nerve, ठीक है। तो here this nerve आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है जुगुलर गैंग्लियन, तो दिस इज द जुगुलर गैंग्लियन यहाँ पे, कि राइट साइड का दिखाया उन्होंने। तो द नर्व अराइजेस फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो अपन पढ़ चुके हैं, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, फ्रॉम द वेंट्रुलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा द नर्व अराइजेस, ठीक है। एंड here it forms the jugular ganglion. During its course, ठीक है, it receives fibers from the sympathetic portion, that is यहाँ पे लिखा हुआ है cranial cervical ganglion, ये लिखा है, ठीक है। तो the cranial cervical ganglions से जो sympathetic fibers है, they join the vagus nerve, ठीक है। तो hence in this region the vagus is known as vagosympathetic trunk, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। Here it has been written as vagosympathetic trunk। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। एंड फोरामेन के बारे में यानी बताया, इट कम्स आउट थ्रू फोरामेन, दैट फोरामेन इज नोन एज फोरामेन लैस्ट्रम और जुगुलर फोरामेन, ठीक है। तो हियर course of the vagus in the neck region, and during its course in the neck region it gives rise to some branch। आप देख रहे हो ब्रांच ये निकली है, ठीक है। फेरिंग्स को सही करेगी, दिस इज द लैरिंजल ब्रांच। एक ब्रांच और ट्रैकियल, ठीक है। रिकरेंट लिखा जरूर यहाँ पे, बट ठीक है, उल्टा आ रही है तब है ये। Then it enters inside the thoracic cavity. This is thoracic cavity. Heart is present here, ठीक है। तो thoracic में आप देख रहे हो this aortic branch. Aortic branch is the last branch of the cervical course, ठीक है। cervical का है, यहाँ पे लोग ने लिखा। Then cardiac branch which supplies to the heart, pulmonary to the lungs, ठीक है। These are the different branches in the thoracic region. Then आप देख रहे हैं superior and inferior trunk बन रहा है, ठीक है। Trunk it goes dorsal to the esophagus, and this is the inferior trunk which
runs on the ventral aspect of the esophagus, and these two trunk they enter inside the abdominal cavity. ठीक है, and abdominal cavity में they supply to the kidney को भी supply करें, intestine को supply करेंगे, then stomach को. ठीक है, these all visceral organs they are supplied by the vagus by forming the plexus on the surface of that particular organ. ठीक है, these are the abdominal branches. इसमें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, मैंने दूसरे डायग्राम में आपको बता ही दिया था. और ये सिंपैथेटिक चेन चल रही है along with the this vertebral column in which spinal cord is present that forms. ठीक है, तो here this is a sympathetic chain. ठीक है, तो उसका पहली जो फर्स्ट गैंग्लियन फॉर्मेशन था that is the cranial cervical ganglion. ठीक है, this is the picture showing the course and distribution of the inferior. Okay, now any confusion regarding this, Raghuvanshi? नो मैम. डिस्ट्रीब्यूशन वाइज तो वेगस सबसे बड़ी होनी चाहिए ना मैम. डिस्ट्रीब्यूशन वाइज तो ट्राइजेमिनल का तो डिस्ट्रीब्यूशन फेस पे ही है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका. हाँ, तो वेगस इज द लॉन्गेस्ट बताया ना, वेगस इज द लॉन्गेस्ट नर्व. तो व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब फिर डिफरेंस क्या रहा फिर? मतलब उसको लार्जेस्ट बोला गया, इसको लॉन्गेस्ट बोला गया, मतलब लार्जेस्ट ये भी. लार्जेस्ट का मतलब है थिकनेस वाइज. ठीक है, Thickness. मोटी कितनी है, तो ओके ट्राइजेमिनल सबसे मोटी वाली है. ठीक है, hence it is largest. There is a difference between largest and longest. लंबी जो है वो वेगस. ओके ठीक है, लेकिन जिसका ट्रंक जो है, जो जो डायमीटर कहेंगे जिसकी बड़ी है, दैट इज ट्राइजेमिनल. यस ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट? ठीक है, तो लार्जेस्ट थिकनेस वाइज है, लॉन्गेस्ट लेंथ वाइज है. तो वेगस इज द लॉन्गेस्ट नर्व, ट्राइजेमिनल इज द लार्जेस्ट नर्व. क्लियर हो गया? यस. एनी कंफ्यूजन? अर्शिका, Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन इसमें भी वेगस No, में? ma'am. No, ma'am. ठीक है, क्लास के बाद एक बार No. रीड जरूर करना, because Yes. it requires some reading also to learn these branches. एकदम से याद नहीं होगी. ठीक है, तो इसको अभी आप क्लास के बाद पढ़ लोगे तो ज़्यादा इजीली याद हो जाएगा. देखो, क्योंकि मुझे जितने नाम दिख रहे हैं वही मैं पूछ रही हूँ. एनीबडी? अनिमेश सिंह, अंकेश? नो मैम. कोई कंफ्यूजन नहीं अभी इसमें? इतना इसमें आप एक दो टर्म याद करके आना. व्हाट इज रोरिंग इन हॉर्स? ठीक है, ये कल मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताना है, कल तो नहीं है क्लास. ठीक है, व्हेन आई टेक द नेक्स्ट क्लास आपको मुझे बताना है व्हाट इज रोरिंग इन हॉर्स, व्हाई इट अकर्स. नेट से देख के आप बताओगे. ठीक है, देयर इज डैमेज टू द दिस राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. बाकी डिटेल आप लोग पढ़ के आना. व्हाट इज रोरिंग इन हॉर्स. सेकेंड टर्म इज वेगल इंडाइजेशन. असाइनमेंट है, दो लाइन में पढ़ के आना. व्हाट इज वेगल इंडाइजेशन? ठीक है, अनदर टर्म इज रोरिंग इन हॉर्स. Ma'am, second question, please repeat me. वेगल इंडाइजेशन. Okay, ma'am. ठीक है, और फर्स्ट इज रोरिंग इन हॉर्स. इसको आप पढ़ के आएंगे, मुझे बताएंगे. दिस इज द अप्लाइड पोर्शन ऑफ द वेगस. ठीक है, now after vagus the 11th nerve is the spinal accessory or accessory spinal, which is the motor nerve. Actually, why it is called as spinal accessory? Because this nerve receives, ये देखो यहाँ पे medulla oblongata मैंने बनाया हुआ है. ठीक है, the spinal cord. This nerve receives fibers from the spinal cord also. ठीक है, क्योंकि cranial nerves अपन क्या कहते हैं, the nerve arise from the brain. ठीक है, but here it also receives fibers from the some of the this cervical region. ठीक है, of the spinal cord. Hence is also known as spinal. Fibers which come from the spinal cord
cervical portion of the spinal cord, they enter through the foramen magnum. ठीक है, कहाँ से एंटर करेंगे? foramen, यहाँ दिखाया नहीं मैंने. That enters, these fibers enter through foramen magnum, then join this root of the spinal accessory which emerges from the medulla oblongata. ठीक है, तो यहाँ से कुछ spinal cord से फाइबर गए, foramen magnum से होते हुए they join the fibers of the spinal accessory, those fibers which arise from the medulla oblongata. ठीक है, अब ये पूरा join करके ये जो complete जो fiber बनेगा, that comes out खानिए through the foramen, and here this foramen is the jugular foramen. ठीक है, glossopharyngeal comes out from the jugular foramen. Vagus also comes out from the jugular foramen, as well as the spinal accessory also comes out from the foramen lacerum or jugular foramen. ठीक है, यहाँ रह क्या लिखना? This is jugular foramen. ठीक है, after coming out from this jugular foramen, ठीक है, or coming out from the cranial cavity through jugular foramen, this nerve gives rise to मोटर है नर्व ये. ठीक है, तो pharynx की मसल्स को सप्लाई करेगी, जितने भी वॉलेंट्री मसल्स है. ठीक है, pharynx में वॉलेंट्री मसल्स आर आल्सो प्रेजेंट. ठीक है, दैट लीड टू द दिस क्लोज कहना चाहिए दिस कंस्ट्रिक्शन ऑफ द pharynx करती है. तो वॉलेंट्री मसल्स ऑफ द pharynx को सप्लाई करेगी, देन larynx, वॉलेंट्री मसल्स ऑफ द larynx, then it also supplies to the soft palate. ठीक है, because the nerve is motor nerve. सप्लाई करेंगे बोलेंगे या उल्टा बोल सकते हैं. ठीक है, तो मसल्स को सप्लाई करेंगी पूरा का पूरा, pharynx, larynx, soft palate. ठीक है, as well as sternocleidomastoideus muscle. Sternocophalicus की एक मसल होती है, one part of the sternocophalicus, that is the sternomastoideus, which is supplied by the spinal accessory. ठीक है, केवल यही नर्व है जो कि वॉलेंट्री मसल्स को या नेक रीजन की मसल्स को सप्लाई कर रही है. Another branch which goes to the trapezius muscle. This trapezius muscle is the muscle of shoulder girdle, जो मैं अभी नेक्स्ट आगे आने वाले समय में पढ़ाऊंगी आपको. trapezius muscle. ठीक है, तो these muscles are the skeletal muscles. ठीक है, and supplied by the spinal accessory. It's very short one, spinal accessory. ठीक है, तो simple है spinal accessory में कुछ नहीं है. Why it is called as spinal? Because it receives the fibers from the spinal cord, cervical region of the spinal cord. ठीक है, and combine करके this fiber comes out from the jugular foramen से आने के बाद ये pharynx, larynx सबकी जो muscles होती है उनको सप्लाई करेगी, not the mucous membrane. इसको सप्लाई करेगी muscles of the these things, pharynx हो गया, larynx, soft palate की muscular portion है. ठीक है, this voluntary muscle. Similarly, it also supplies to the sternomastoideus as well as trapezius muscle. Trapezius is the muscle of the shoulder girdle, which we will study in the further classes में पढ़ेंगे अपन. Okay. Then the last cranial nerve is the hypoglossal. ठीक है, hypoglossal, as the name indicates, hypo means glossal means, little meaning of glossal, Tongue. name, tongue. हाँ, this This supply tongue. हाँ, this nerve is also motor nerve. ठीक है, तो मोटार है तो किसको सप्लाई करेगी? मसल्स को. ओके, आपकी जो टंग है वो मूव कर रही है बोलते समय, खाते समय, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स. ठीक है, मसल्स मूवमेंट कर रही है जो भी बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द टंग. ठीक है, तो दिस हाइपोग्लॉसल मसल इट सप्लाइज टू द मेनली टू द मसल्स ऑफ द टंग. ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ से होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, 2-3 रूटलेट्स रहेगी, वहां से ओरिजिन करने के बाद दिस नर्व इट कम्स आउट थ्रू फोरामेन. ये जुगुलर फोरामेन नहीं है. ठीक है, दिस इज द हाइपोग्लॉसल फोरामेन. Where the hypoglossal foramen is present? Anybody can answer. occipital. Occipital बोलेंगे या क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीपिटल बोन में क्या कोई फोसा होता है? Which that fossa has 2 foramen. One is hypoglossal foramen, another is another one.
याद आ रहा है कुछ? स्कल पढ़ाया होगा मैडम ने तो बताया होगा। कॉन्डोलाइड के नीचे। हाँ, थोड़ा सा पास में आप कॉन्डिल, एक्चुअली देयर इज अ फोसा दैट इज नोन एज कॉन्डिलर फोसा, ठीक है। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और पैरामेस्टॉइड प्रोसेस पढ़ी ना आपने, उनके बीच में देयर इज अ फोसा व्हिच इज नोन एज कॉन्डिलर फोसा। दैट फोसा हैज टू फोरामेन, ठीक है। ओपनिंग ऑफ कैनाल कह सकते हैं, टू फोरामेन आर प्रेजेंट एंड दीज आर, वन इज द कॉन्डिलर फोरामेन, ठीक है, एंड अनदर इज द हाइपोग्लॉसल। डॉर्सल वन इज द कॉन्डिलर फोरामेन और उसके नीचे था हाइपोग्लॉसल फोरामेन, एंड फ्रॉम दैट फोरामेन दिस नर्व कम्स आउट, हाइपोग्लॉसल फोरामेन। तो कहाँ होता है? कॉन्डिलर फोसा में होता है, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन पढ़ी आपने, वहाँ पीछे की तरफ फोसा में दो फोरामेन है, कॉन्डिलर फोरामेन है, हाइपोग्लॉसल। तो दिस नर्व कम्स आउट थ्रू फोरामेन, that foramen is the hypoglossal foramen. After coming out, this nerve gives rise to the enter inside this oral cavity and supplies to the intrinsic muscles as well as extrinsic muscles of the tongue. What do you mean by intrinsic muscles of tongue? Anybody can answer. It's just used to change the shape of the tongue. Or clear thoda sa intrinsic muscles. Its insertion and belly and is lie on the tongue, not the other part. देखो, what is intrinsic muscle? Intrinsic muscles, because tongue क्या है? Muscular organ है. तो the mass of the tongue which is formed by the muscles, जो mass tongue जो बनी हुई है ना जिससे, ठीक है, the mass of the muscles formed by mass of the tongue formed by the muscles and those muscles are known as intrinsic muscles, ठीक है. And extrinsic muscles means the muscles which are attached to the tongue, responsible for the movement of the tongue, that is known as extrinsic muscle, ठीक है. तो तीन मसल के शायद नाम बता दिए होंगे मैडम ने, बताया अभी नहीं? मसल्स ऑफ द टंग पढ़ लिया अभी? No, ma'am. ओके, तो थ्री पेयर्स ऑफ मसल्स आर देयर, ठीक है. वन इज जीनियोग्लॉसस, ठीक है, अनदर इज हायोग्लॉसस और एक और है स्टाइलोग्लॉसस, ठीक है. थ्री पेयर ऑफ मसल्स आर देयर. वन इज स्टाइलोग्लॉसस, जीनियोग्लॉसस एंड हायोग्लॉसस, जो आप अभी पढ़ोगे, ठीक है. एंड दीज मसल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द टंग, ठीक है. एक अटैचमेंट उसका होगा, ठीक है, चाहे तो ओरल कैविटी का ये कह सकते हैं मैंडिबल से अटैचमेंट होगा या फिर हायोइड बोन से अटैचमेंट होगा, ठीक है. तो दीज आर द एक्सट्रिंसिक मसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द टंग. तो इंट्रिंसिक मसल्स होगी द मसल्स विच फॉर्म द मास ऑफ द टंग, ठीक है, जिससे बल्क जो बन रहा है टंग का, फॉर्म बाय द इंट्रिंसिक मसल, ठीक है. तो 12 नर्व्स क्लियर हो गई आपको? Yes, ma'am. ओके, अच्छा. अदर नर्व्स विच सप्लाई द टंग, कौन कौन सी होगी? ग्लोसोफेरेंजियल, Glossopharyngeal. फेशियल, Glossopharyngeal. ट्राइजेमिनल, ठीक है. ट्राइजेमिनल हो गई और ग्लॉसोफेरिंजियल हो गई. अच्छा सॉरी, ट्राइजेमिनल एंड फेशियल, दे सप्लाई टू द anterior 2/3 और posterior 1/3 पार्ट ऑफ द टंग. थर्ड को सप्लाई करेंगे कि posterior 1/3 को? एंटीरियर 2/3, एंटीरियर, ठीक है. तो दिस फेशियल एंड ट्राइजेमिनल सप्लाई टू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग एंड posterior 1/3 Hypoglossal. ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लॉसोफेरिंजियल, ठीक है. ये सेंसरी की बात हो रही है बना, ठीक. हाइपोग्लॉसल इज मोटार और ये पूरे उसकी मसल्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है. तो 4 नर्व्स विच सप्लाई टू द टंग, अगर आ गया तो कौन कौन सी हो जाएगी? Trigeminal, facial, hypoglossal, and glossopharyngeal. ठीक है, क्लियर हो गया. ओके, द नर्व्स विच सप्लाई टू द नेजल कैविटी, कौन कौन सी आती है नेजल कैविटी में? एक तो ऑल्फैक्शन के लिए उसका नाम पता है आपको, नेजल कैविटी में? Ma'am, olfactory. Three?
ट्राइजेमिनल। ठीक है, तो ऐसे घुमा के अब पूरा पढ़ लिया, अब तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट नर्व, स्मॉलेस्ट नर्व, dorsal aspect of the this, ठीक है, और the nerve which supplies to the maximum muscles of the eye, oculomotor. oculomotor, ठीक है। तो इस तरीके से अब जब इतना पढ़ने के बाद आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन आई एम शोइंग द जिस्ट ऑफ दिस cranial nerves in another figure। ये आपके पास बुक में है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। वन इज द olfactory which gives which is supplied to this or which receives the fiber from the this nasal cavity, क्लियर दिखाई दे रहा है। ये सेंसरी है, इसका कलर अलग है, ठीक है। ऑप्टिक का कलर भी ब्लूइश दिख रहा है। ऑप्टिक कहाँ से? आई से आ रही है, ठीक है। देन ऑक्यूलोमोटर, ये देखो ऑक्यूलोमोटर जो है डिफरेंट मसल्स ऑफ द आई बॉल, वहाँ से निकल के ये, ठीक है, ये अटैचमेंट यहाँ पे मिडिल टू द सेरेब्रल पेडेंकल में जा रही है, ठीक है। सो पिक्चर बना हुआ क्लियरली दिख रहा है। देन ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल में 3 डिवीजन थे, अपर, मिडिल एंड लोअर। नेम देम 3 ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमिनल। Ophthalmic, maxillary and mandibular. Maxillary mandibular. तो हियर इन दिस फिगर इट हैज बीन शोन, ऑप्थेल्मिक आई की तरफ जा रहा है, दिस इज मैक्सिलरी वन, और नीचे जा रहा है दैट इज मैंडिबुलर, ठीक है। नाउ द फेशियल वन, फेशियल ऊपर नहीं जा रही है, देखो फेशियल यहाँ नहीं जाएगी, केवल फेस रीजन इधर जाएगी। तो फेशियल ये दिख रहा है, ठीक है। इसकी ब्रांचेस डॉर्सल एंड वेंट्रल बकल दिख रही है, ठीक है। तो दिस इज द फेशियल वन, तो आप इसको जरूर एक बार देख लेना। देन कॉक्लियोवेस्टिबुलर, दैट इज ऑडिटरी, इट कम्स फ्रॉम द इंटरनल ईयर, ठीक है। वेस्टिबुलर पार्ट फॉर बैलेंस एंड कॉक्लियर पार्ट फॉर द हियरिंग, ठीक है। ये सब पढ़ा चुकी मैं आपको, जस्ट ये दिखा रहे। देन ग्लॉसोफेरिंजियल, द पिक्चर शोइंग फ्रॉम द फेरिंग्स एरिया, ठीक है, एंड टंग। तो दिस इज मिक्स नर्व, ठीक है। देन वेगस आपको क्लियर दिखाई दिए, सारे जितने भी विसरल ऑर्गन्स है दैट हैज दिस हैव बीन शोन हियर, ठीक है। लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया एंड अदर इंटेस्टाइन, ठीक है। सॉरी, लीवर है, नॉट किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन एंड किडनी एंड अदर पार्ट्स, ठीक है। अदर विसरल ऑर्गन्स दे हैव बीन शोन हियर, ठीक है। देन एसेसरी, स्पाइनल एसेसरी, देखो ये जा रही है, दिस इज ट्रेपेजियस मसल, ठीक है। दिस इज द मसल ऑफ द शोल्डर girdle, अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दिस एसेसरी इट्स अप्लाइज टू द दिस और कम्स फ्रॉम द, कह सकते दिस ट्रेपेजियस मसल, ठीक है। और यहाँ पे नीचे एक मसल और दिख रही है, स्टर्नो mastoideus, which is the part of the sternocephalicus muscle, ठीक है, जो कि नेक की मसल है और ये शोल्डर girdle की, यहाँ से एसेसरी जा रही है। देन हाइपोग्लॉसल, क्लियरली मेंशन, क्लियरली सीन हियर, ठीक है। दिस इज टंग, और टंग के इधर से ये आके हाइपोग्लॉसल। रिगार्डिंग एवरीथिंग अबाउट द दिस cranial nerves, ठीक है। Then this is the gist of the all the cranial nerves shown in tabular form। इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। पैसेज सभी का दिखाया हुआ है, लाइक ऑल्फैक्टरी बल्ब क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से है, ठीक है। ऑप्टिक फ्रॉम ऑप्टिक फोरामेन, ऑक्यूलोमोटर नर्व कम्स आउट थ्रू फोरामेन ऑर्बिटोरोटंडम। ये जो टेबल है आपको अच्छे से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, all the nerves, and for description you study the trigeminal and vagus thoroughly। डिस्क्रिप्शन में मेनली ट्राइजेमिनल एंड वेगस पूछा जाता है, जिसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बनना चाहिए, ठीक है। 5-10 मार्क्स जितने का भी आएगा आपको। अदरवाइज फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस टेबल इज सफिशिएंट, इसको बिल्कुल रट लेना। इस टेबल में पूरा दिया हो, जितना मैंने पढ़ाया है, एवरीथिंग हैज बीन गिवन हियर इन अ टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इसमें भी लिखा हुआ है ट्रॉक्लियर नर्व इज द पैथेटिक नर्व, ठीक है। स्लेंडरस नर्व भी लिखा हुआ है, ओके। एंड दिस एरिया और ऑर्गन विच इज सप्लाइड बाय दीज नर्व्स, इसको मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, गैसेरियन गैंग्लियन, ठीक है। जस्ट आपको शो कर रही हूँ। ये आप खुद पढ़ना, ठीक है। देन दिस एब्डुसन नर्व के बारे में लिखा, कॉर्पस ट्रेपेजोइडियम से ओरिजिन होता है, ठीक है। कॉर्पस ट्रेपेजोइडियम इज द पार्ट ऑफ medulla oblongata. मेडुला ऑब्लिंगेटा, गुड, ठीक है।
अगेन इट कम्स आउट फ्रॉम फोरामेन रोटेंडम, ठीक है। फेशियल नर्व इट कम्स आउट थ्रू स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन लिखा हुआ है। गैंग्लियन ऑफ द फेशियल इज जेनिकुलेट गैंग्लियन, ये बताया था, ठीक है, which is inside the facial canal. Then accessory, spinal accessory also comes out from the jugular foramen, ठीक है, and hypoglossal nerve it comes out through hypoglossal foramen, ठीक है, and supplies to the tongue, यहाँ लिखा ही हुआ है। accessory nerve it supplies to the muscles of the shoulder region भी आ जाएगा इसमें, larynx, pharynx and soft palate भी आ जाएगा, okay। तो दिस इज ऑल फॉर द cranial nerves। एनी डाउट आप इसको पढ़ना अच्छे से, जो भी डाउट होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। टुमारो देयर इज नो क्लास, नो इज सैटरडे, ठीक है। तो मंडे को डॉक्टर निधि गुप्ता विल टेक योर क्लास, जो आप वो आपको टंग या ओरल कैविटी पढ़ा रही है, शी विल कंटिन्यू बाय दिस योर टंग पोर्शन और मे बी दिस ओरल कैविटी जो वो पढ़ा रही है, और उसके नेक्स्ट वीक में मैं फिर क्लास लूँगी, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द एंजियोलॉजी पोर्शन, ठीक है। हार्ट मैडम ने आपको पढ़ा दिया है, सप्लाई टू द हेड एंड नेक रीजन, वो मैं शुरू करूँगी आपको, क्योंकि उसके आगे मुझे पढ़ाना है ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई टू द नेक रीजन, देन ब्लड सप्लाई टू द हेड एंड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ये पोर्शन में नेक्स्ट जब भी मैं पढ़ाऊंगी तो वो वहाँ से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। एंड जो स्प्लैंक्नो का पोर्शन है और ओरल कैविटी का है, डॉक्टर निधि गुप्ता विल कंटिन्यू फ्रॉम। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? आपका मिड टर्म एग्जाम हो सकता है मई के एंड में हो या मई के कभी, अभी डेट नहीं आई है, ठीक है, बट रेडी फॉर एग्जामिनेशन। जो जो पोर्शन पढ़ा दिया वही पूछेंगे, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और मैं बीच बीच में बताते जा रही हूँ ऑब्जेक्टिव के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, भी पढ़ाती हूँ मैं कि इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपका, लाइक अभी जैसे मैंने बताया लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, अनदर नेम फॉर ट्रॉक्लियर नर्व, पैथेटिक नर्व किसको कहेंगे, तो यू मस्ट नो ऑल द थिंग्स। इस आपके थ्रू होगा? पार्डन बेटा, कौन बोल रहे? मैम प्रियंका, मैम किस प्रियंका, हाँ आपके बोल। होगा एग्जाम? इस हफ्ते नहीं होगा बेटा आपके थ्रू एग्जाम, क्या बोल रहे बेटा? गूगल फॉर्म या फिर गूगल अच्छा, क्लासरूम किस फॉर्मेट में? गूगल में नहीं हो सकता मेनली बेटा, बिकॉज यू हैव दिस सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। शुरू में एक बार तो हमने गूगल फॉर्म से किया था, तो गूगल फॉर्म में ओनली ऑब्जेक्टिव रखा था, और जो भी कंडीशन होगी मैं आगे बताऊंगी आपको, वेदर इट इज बाय गूगल फॉर्म और अदर वे, ठीक है। आई विल लेट यू नो लेटर ऑन, जैसे मेरे को क्लियर होगा कि किस फॉर्मेट में करना है, ठीक है। गूगल फॉर्म में होगा तब भी बता देंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव है, और वैसे तो अभी इसके पहले वाले क्लास में तो हम लोग ने ओनली ऑब्जेक्टिव रखा था, अब जो है वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रखा जाएगा। तो वेदर वी विल मेल द क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर मेल कर देंगे, टाइम दे देंगे, और यू रिटर्न दिस योर PDF बाय रिटर्निंग मेल, या आप हमको मेल कर देना वापस, ऐसा भी कर सकते हैं, या गूगल फॉर्म में। अभी क्लियर नहीं है, ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगी, बट पैटर्न जो रहेगा 40-60 रेशियो रहेगा, 40% इज ऑब्जेक्टिव एंड 60 इज सब्जेक्टिव, ओके। तो जितना भी पढ़ा दिया रिगार्डिंग स्कल पूरा कंप्लीट हो गया आपका। तो स्कल की सारी बोन्स फॉर डिस्क्रिप्शन मेनली फ्रंटल बोन, मैंडिबल, these three are for important for descriptive question, ठीक है। एंड बाकी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। देन ब्रेन में भी आपको प्रोजेंसिफ्लॉन बनना चाहिए, हाउ टू राइट अबाउट द प्रोजेंसिफ्लॉन। देन मिड ब्रेन का डिस्क्रिप्शन बनना चाहिए, हाइंड ब्रेन में बहुत ज़्यादा लिखने को नहीं है, बट फॉर दिस सेरिबेलम आपको अच्छे से लिखते बनना चाहिए। सेरिब्रल पेडेंकल्स हो गए, देन डिफरेंट फोलिया ऑफ द 10 फोलिया ऑफ द सेरिबेलम, ठीक है। मिड ब्रेन हो गया। देन डायनसिफ्लॉन अलग से तो नहीं आता, कभी पूछा जा सकता है वैसे। तो प्रोजेंसिफ्लॉन पूरा अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल वेंट्रिकल टेक्स प्लेस, ठीक है। देन थर्ड वेंट्रिकल एंड
ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन द थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल बाय द प्रेजेंस ऑफ, जैसे एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस हुआ, ठीक है। देन फोरामेन ऑफ मोनरो किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनना चाहिए, ठीक है। 3 सर्टेन दिस folds of the dura mater like fox cerebri क्या होता है, tentorium cerebelli क्या होगा, then diaphragma cell, what is the diaphragma cell, ये सारी चीजें ओटी के लिए आपको बननी चाहिए, ठीक है। Thank you. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। The next class will be taken by Dr. Nidhi Gupta. Tomorrow there is no class, ठीक है। तो कल कोई लिंक नहीं भेजेंगे हम, सैटरडे को कल क्लास नहीं होगी, तो फ्रॉम मंडे यू कंटिन्यू on the next class. Any query regarding this examination? मैम जो ये टेस्ट होंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर कहलाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर है? हाँ, एक्चुअली अभी क्या आप लोग का पहले तो हम लोग के सेमेस्टर होते थे, अब क्या ईयरली एग्जाम होने लगे। ईयरली एग्जाम के लिए पहले 3 टर्म्स आते हैं, फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो इसको आप मिड टर्म कह लो, या मिड टर्म नहीं कहलाएगा, फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। टर्म है, पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है। ओके मैम। और 40 मार्क्स, कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा। इसमें 16 नंबर का आपका ओटी होगा, रिमेनिंग जो बचेगा 26 का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 1-2 महीने बाद फिर सेकेंड टर्म होगा, फिर थर्ड टर्म होगा, 2-2 महीने के गैप में, ठीक है। तो 90% जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद थर्ड टर्म हो जाएगा, देन यू विल हैव दिस एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। Thank you. I'm leaving.